Good morning, students. Today I am going to continue your poetry. The Lake Islay of Innisfree, second stanza. Now, before going to start the second stanza, general idea again of the first stanza, what the poet wants to deliver us from the first stanza about this poem. The poet states that he will rise and soon be going to Innisfree. Innisfree is a small island we have seen. There he will build a small wooden shelter whose opening will be in the forest, and he will be going to be quiet life here, simple, rustic, bare of furnitures. He will make it with the clay and ancient constructions of the house there, and he is also going to have a garden with 19 rows planted in a row, beehive for honeybee. Poet informs that he desires to live alone, surrounded only by the sounds made by bees, and be with nature. Now, second stanza. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, the midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets' wings. Now, here are the meanings for this second stanza. Peace. What the peace here in the second stanza says? The silence that is synonyms to nature. That is peace here. Dropping in slow motion. Peace involves one gradually. Veils, metaphorically, a mask or a shield that covers the environment surrounding, literally a piece of a fine material to conceal, to hide the face, we can say. Cricket, an insect related to the grasshopper, but with shorter legs. All a glimmer, shining brightly. Linnet, a brown and a grey finch with a reddish breast and forehead, reflected by the sun on the forehead. Finch, a seed-eating songbird that typically has a stout bill and colorful plumage. Purple glow, light reflected by the sun on the heater makes island appear bright purple. The color purple is often associated with royalty, we can say in literary devices, nobility, luxury, power, ambition. Purple also represents the meanings of wealth, extravagance, creativity, wisdom, dignity, grandeur, devotion, peace, pride, mysteries, independence, and magic. So, what in the second stanza the poet says? The first lines give a clue why the poet wants to build a little cabin in an isolated island with very little habitations. However, peace comes dropping slow, indicates that he is restless and too busy in his city life. Maybe that is why he wants the solitude to break away from the hustle and bustle of the urban life. He is nostalgic about the morning hour in the island, when the daylight breaks in gradually to keep pace with the calm and a pace of a quiet countryside. The speaker says, the mist or the fog that veils the morning are lifted. Once the sun rises, morning soon is filled with the sound of the crickets creeping in the surroundings. He equates peace to nature. It seems the midnight looks beautifully, twinkling with millions of stars. Midway, the island seems alight with a purple light. It may also indicate the blissful calm, the peaceful siesta that he can enjoy royally as the sight to behold, as it is filled by flocks of linnets homeward bound. It makes us think it's not one bird but lots of them in flight. The poet creates an imagery, purple haze full of birds in flight. We are tempted to go there for a stay. Now, in this stanza, the poet has described the environment of the island, what he usually wants there.
what the atmosphere would look, because he has been very much tired up with the hustle bustle of his urban lifestyle. He wants a solitude, peace, isolated living in the island with little habitants, because he has been tied up with all the busy schedules of this hectic lifestyle, what he lives in the urban life here. यहाँ इन स्टैंजा में पोइट ने क्या इमेजिनेशन की? फर्स्ट लाइन्स में उन्होंने क्लू दिए कि वो बिल्ड करेंगे, जो वो कैबिन, लिटिल कैबिन, वो उस अकेले आइलैंड में, वीरान आइलैंड में, आइसोलेटेड, बहुत कम लोगों के साथ, वेरी लिटिल हैबिटेशंस. हाउएवर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, इंडिकेट दैट ही इज रेस्टलेस एंड टू बिजी. यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि आई शैल हैव सम पीस दैट. कहाँ पर वो पीस चाह रहे हैं? उस आइसोलेटेड आइलैंड में, वो इंसले, द लेक ऑफ इंसले ऑफ इंसफ्री में वो पीसफुली रहना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि वो पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. ये जो वर्ड है, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, मीन्स ड्रॉपिंग अ स्लो मोशन. पीस इन्वॉल्व्स वन ग्रेजुअली, मतलब नेचर से जो शांति उन्हें मिलेगी वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वो चाहते थे. क्यों चाहते थे ऐसा? वो क्योंकि वो अपनी जो वो इंडिकेशन कहाँ किस तरफ दे रहे थे, अपनी जो लाइफस्टाइल थी, उनकी जो रिसेंट प्रेजेंट लाइफस्टाइल, अर्बन लाइफ की, सिटी की, हस्टल बस्टल यानी दौड़ भाग वाली जो ज़िंदगी वो जी रहे थे, उससे वो एकांत और शांत वातावरण में जाना चाहते थे, जब प्रकृति की पूरी शांति उन्हें, प्रकृति को पूरे शांतिपूर्ण तरीके से देखने का मौका मिले, वहाँ कोई ना हो, सिर्फ प्रकृति के साथ वो रहें वहाँ उस जगह पे. मे बी दैट इज़ वाई उन्होंने ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. अब वो मॉर्निंग से, मतलब वेल्स मीन्स हमने देखा उसकी वो शेड दैट कवर्स द एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फियर जो वहाँ प्राकृतिक एटमॉस्फियर जो सूर्य की किरणों से ढका हुआ है ना, बर्ड्स, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें, ये इंडिकेशन क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे ही वॉन्ट्स द सॉलिट्यूड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द हस्टल बस्टल ऑफ द अर्बन लाइफ. से टूट जाए उनसे. ही इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट द मॉर्निंग आवर्स इन द आइलैंड. वो इन चीज़, यहाँ की जो लाइफस्टाइल है शहरों की, सिटी की, वो बहुत ही सुबह उठते से दौड़ भाग वाली ज़िंदगी होती है. हमें कुछ भी अनुभव करने का मौका नहीं मिलता. हम हमारे कामों में लग जाते हैं, तुरंत सब चीज़ें फास्टफुली हम करते हैं. हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं जीवन में, पाने की होड़ में, कुछ करने की होड़ में हम कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रहे. मगर वो चाह रहे हैं कि उस आइलैंड में अकेले वो वहाँ उस नेचुरल एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें. मॉर्निंग आवर्स उस आइलैंड का कैसा दिखेगा? डे लाइट ब्रेक, मतलब जब दिन उगेगा तो वो कैसा दिखेगा? पूरा शांति की, पीस विद द काम इन अ पीस ऑफ अ क्वाइट कंट्री साइड. एक जंगल में अकेले वीरान आइलैंड में अगर वो हैं तो कैसा रहेगा? एटमॉस्फेयर बिल्कुल काम, पीस रहेगा, शांति रहेगी. और उस स्पीकर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पोएट क्या कह रहे हैं? द मिस्ट और अ फॉग, मतलब जो धुंध है प्रकृति को आवरण की तरह ढक के रखेगी. सुबह सुबह जब उठ के वो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. वंस द सन राइसेस, जब सूर्य उदय होने लगेगा तो क्या होगा? वो हर जगह कैसे फिर मॉर्निंग कैसे लग जाए, तो दिन उगने लग जाएगा. तो मॉर्निंग सोन इज फिल्ड विद द साउंड ऑफ क्रिकेट्स, बर्ड्स की आवाज़ों से, इंसेक्ट्स की आवाज़ों से, क्रीपिंग से वो सराउंडिंग्स चहचहाने लग जाएगी. ही इक्वेट्स अ पीस टू नेचर, मतलब प्रकृति से जोड़ते हैं कि बता रहे हैं कि प्रकृति कितने सौंदर्य तरीके से दिन का उदय वहाँ पर होता है. मगर हम हमारे जो अर्बन लाइफस्टाइल में, सिटी लाइफस्टाइल में इसे हम महसूस ही नहीं कर पाते. प्रकृति कितना पीसफुल एनवायरनमेंट हमें फ्रॉम द मॉर्निंग डे ब्रेक से पीस एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करके हमें अपने आप को शांत करने की और इस खूबसूरती को एंजॉय करने का हमें एक मौका देती है, मगर हम इसे एंजॉय नहीं कर पाते. इट सीम्स द मिडनाइट लुक्स ब्यूटीफुल ट्विंकलिंग विद मिलियंस ऑफ स्टार्स. अब वो यही चीज़ अगर रात का हम देखें तो पूरा आसमान तारों से भरा हुआ रहेगा. इतना सुंदर नज़ारा हम शायद हमारे इस सिटी लाइफ में, शहरी जीवन में ये देखना ही भूल गए हैं. हम हमारे घरों में बंद होकर छत के नीचे ही अपने जीवन को बिता लेते हैं. और एट द मिड डे और मध्य दिन में, मध्याह्न समय में, आफ्टरनून में, वो क्या कहना चाहता है? आइलैंड सीम्स ए लाइट विद पर्पल लाइट. कैसे दिखता है पर्पल लाइट? मतलब जो रोशनी है वो किस कलर की हो जाएगी? नून की जो रोशनी है, दोपहर का जो एटमॉस्फेयर है, सन ब्रेक, वो कैसा हो जाएगा? लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सन
ऑन हीटर, मतलब सूर्य जब उदय होता है उसके बाद जब दिन में जब चढ़ जाता है ऊपर, तो आइलैंड कैसे दिखेगा, बिल्कुल ब्राइट कलर में, ब्राइट पर्पल कलर वहाँ पर दिखेगा। यहाँ ब्राइट पर्पल कलर ही क्यों बताया, क्योंकि एसोसिएट कर रहा है सिंप्लिसिटी, हम कह सकते हैं लग्जरी, पावर, एम्बिशन, हमें ऊर्जा प्रदान करती है कुछ भी करने की, ताकत प्रदान करती हैं, है ना। वो से हम उस ऊर्जा से हम वेल्थ, विजडम, डिवोशन, प्राइड, इन सब की तरफ वो आकर्षित करता है ये कलर, पर्पल कलर। तो ये यहाँ पे कहते पोएट सेज कि वो जो मिड डे है, आइलैंड सीम्स एलाइट विद द पर्पल लाइट, इट मे ऑल्सो इंडिकेट द ब्लिसफुल काम, शांति का एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है ना, अकेले हैं, आइसोलेटेड है। द पीस सिस्टर्स दैट ही कैन एन्जॉय रॉयली, बिल्कुल रॉयल तरीके से, राज्य मतलब बिल्कुल अकेले, मतलब अपना ही राजपूत राजा बनकर वहाँ पर उस चीज़ को अनुभव करें। The poet says that the evening is a sight to behold as it is filled by flocks of linnets homeward borne. अब शाम का समय, शाम का समय वहाँ पे क्या बता रहे हैं पोएट, ये लिनेट्स क्या हैं, अ ब्राउन एंड अ ग्रे फिंच विद अ रेडिश ब्रेस्ट एंड फोरहेड, ये एक बर्ड, अ फिंच है, लिनेट अ ब्राउन एंड अ ग्रे फिंच, फिंच इज व्हाट, अ सीड ईटिंग सॉन्ग बर्ड, है ना। ये फिंच जो है वो कैसी है, ब्राउन एंड ग्रे, वो क्या कर रही है, सॉन्ग बर्ड है, गाना गा रही है, इवनिंग का समय उसके गाना सुनने में वो व्यतीत करना चाहते हैं। टू बी होल्ड एज इट इज़ फिल्ड बाई फ्लॉक्स ऑफ लिनेट्स, फ्लॉक्स में उस कोरस आवाज़ में उन बर्ड्स की, जब वो शाम के समय सारे जो बर्ड्स होते हैं एक साथ झुंड बनाकर अपने घर की तरफ लौटते हैं, तो शाम को आसमान कैसा दिखता है, जैसे कि मानो वो बर्ड्स का जो झुंड है गाते गाते अपने घर की तरफ लौट कर आ रहे हैं। It makes us think it not one bird but lots of them in flight. The poet creates an imagery, purple haze full of birds in flight. We are tempted to go there for a stay. इतने सारे जो इमेजिनेशंस हमारे माइंड में पोएट ने स्टैंजा में क्रिएट किए हैं, वो पर्पल स्काई, वो फुल ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइट, इतने एक साथ बर्ड्स की आवाज़ें, और ग्लिटरिंग स्टार्स इन द नाइट, ये सब चीज़ें हमें टेम्प्ट कर रही है, हमारी इच्छा बढ़ा रही है कि हम भी जाकर उस आइलैंड में रहें, ऐसे पीसफुली वहाँ हम भी उसको एंजॉय करें, नेचर को। हम आगे अब नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।